Good morning, students. Today we are going to discuss about parasitism. In the previous lecture, we have already discussed about predation and competition. So now let us start with the new topic. Now, parasitism. This word you have been listening in the past also, and very easy to understand the term as such. Parasitism is a mode of life which ensures free lodging and meal. And therefore, it is not surprising that parasitism has evolved in so many taxonomic groups, from plants to higher vertebrates. Now, many parasites which have evolved, they are very host specific in such a way that both the host as well as the parasite they have co-evolved. If the host evolves special features, special mechanism for rejecting the parasite has evolved certain mechanism to counteract and neutralize such changes. So that is how they have co-evolved. ये टर्म याद रखिएगा, co-evolved का मतलब होता है पैरासाइट में भी इवोल्यूशन हो रहा है और साथ में भी होस्ट में भी इवोल्यूशन हो रहा है. पैरासाइट में इवोल्यूशन हो रहा है in order to cling to the host body, not to get rejected by the host. पैरासाइट में ये इवोल्यूशन हो रहा है. जो होस्ट में इवोल्यूशन हो रहा है to reject the parasite, developing mechanism in order to reject the parasite. So that is the meaning of co-evolution. Are you getting it what I'm trying to say? I hope so. Okay. Now let us talk about certain things. Parasite is the mode of life which guarantees free food and space. In many cases, parasite have a specific host. So there is co-evolution of both the host as well as the parasite. Now let us talk about the adaptation which the parasites adapt inside the host as such. In many cases it has been observed, especially if the parasite is an endoparasite, there is loss of sense organs in the parasite. क्योंकि सेंस ऑर्गन्स की जरूरत ही नहीं होती. Now presence of suckers and hooks in order to cling to the host. डेवलप होते हैं ऐसे फीचर्स पैरासाइट में, सकर्स या हुक्स, ताकि स्टिक कर सके किसके साथ, होस्ट के साथ. लॉस ऑफ स्टमक एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. देयर इज नो नीड, खाना तो डाइजेस्ट हुआ ही मिल रहा है, जरूरत ही क्या है डाइजेशन की. हाई रिप्रोडक्टिव रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आर वैल्यू, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये पैरासाइट में बहुत ज़्यादा होना चाहिए. तो जितने भी सेंस ऑर्गन है वो नहीं है. जो आपका एलिमेंट्री कैनाल का इंपॉर्टेंट पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, तो जिसमें जो एनर्जी खर्च होनी थी वो यूटिलाइज हो रही है रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने में, टू इंक्रीज द आर वैल्यू. और ये बहुत ज़रूरी है. पैरासाइट में कभी कभी इंटरमीडिएट होस्ट भी होता है, वेक्टर या होस्ट भी होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मॉस्किटो, प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट which has two hosts, mosquito, female anopheles, as well as human beings or other mammals. Similarly, in liver fluke, snail and fishes are the two hosts. Accidentally, even human being become a host. So these are all what we have been discussing about the adaptation in parasites. Now एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट, ये तो बहुत आसान है. एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो बाहर के एरिया में प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे एग्जांपल क्या क्या है, माइट्स है, टिक्स है, ये सारे क्या हैं, एक्टोपैरासाइट है. एंडोपैरासाइट की बात करें, प्लाज्मोडियम एंडोपैरासाइट है. टाइफाइड का बैक्टीरिया एंडोपैरासाइट है, टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया, इट इज एन एंडोपैरासाइट. सैल्मोनेला टिफी कहते हैं, दैट इज एन एंडोपैरासाइट. ये सारे प्लाज्मोडियम एंडोपैरासाइट है. एंटामीबा हिस्टोलिटिका एंडोपैरासाइट है. ठीक है. तो एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स अगेन एन एंडोपैरासाइट.
So that is the difference between ectoparasite and endoparasite. Now, ऑब्लिगेट एंड फैक्यूलेटिव पैरासाइट वो होते हैं जो कि अपनी लाइफ साइकिल का जो है वो खुद कंप्लीट कर सकते हैं कि थोड़े समय के लिए उनको होस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन ये होते हैं फैक्यूलेटिव. ऑब्लिगेट, दे रिक्वायर एन ऑर्गेनिज्म टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. विदाउट दैट इट कैन नॉट बी पॉसिबल. उनको अंदर ही रहना होगा. So that is the main difference between facultative and obligate parasites. Now let us talk about another very interesting parasitism which is called as brood parasitism. Laying or physical transport of egg of one species into the nest of second species is called as brood parasitism. आपने क्रो और कुकू का एग्जाम्पल हम आपको बता दें. एग्स दोनों के बहुत सिमिलर होते हैं. क्रो जो है कुकू जो है अपना एग अपने नेस्ट नहीं बनाता. उस नेस्ट बनाने में वो एनर्जी खर्च नहीं करता, बल्कि अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को बढ़ाता है. दैट इज इंक्रीजिंग इट्स आर वैल्यू, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट. और वो क्रो के नेस्ट में अपने अंडे रख देता है. एग जो होता है कलर और मार्किंग में, साइज और शेप में, क्रो का एग और कुकू का एग दोनों बहुत सिमिलर है. इतना सिमिलर होता है कि इवन द क्रो कैन नॉट डिटेक्ट दैट इट इज द एग ऑफ कुकू बर्ड. तो इस तरह से कुकू बर्ड अपनी एनर्जी, अपना टाइम सेव कर लेती है और उसको अपने रिप्रोडक्टिव फिटनेस को बढ़ाने में यूटिलाइज कर लेती है. Now this is an example of brood parasitism, which is very important question जो कि पूछा जाता है एग्जाम में. Now let us talk about homework assignment. Define parasitism and give one example. Very easy. Write certain adaptive features of parasite. हमने आपको बताया था. और तीसरा है explain brood parasitism. Thank you. Have a nice day.